Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. So now students, we will start our new chapter, chapter 8, Air and Water. In this chapter, we will study about composition of water, what is the composition of air, which of the following gases get composed in a air. We should study about the percentage composition of oxygen, nitrogen and carbon dioxide, which are the causes that pollutes our air, when what are the process of the water cycle. These all topics we should cover in our chapter. Now look at the some learning points. Air, water and water cycle. Now students, get ready for the exercise. Identify the sources of water and write their names in the space given below. Now look at the first image and identify which is the source of water. बच्चों, ये आपको first image किसकी show कर रखी है? ये हमें show कर रखी है lake की. Now fill it with lake. Now look at the second image. Second image you shown is that a well. Now third image is shown is a tube well. Next one you shown is that a river. These all images are shown the different sources of water. Now let's begin the chapter. Air and water are two important components of nature. Both are essential for all living beings. Without air and water, nothing could survive on the earth. बच्चों, आप सभी को पता है कि जो हमें नेचर के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, दो इसेंशियल पार्ट हैं, वो कौन कौन से? एयर और वाटर, हवा और पानी. बच्चों, अगर एयर और वाटर हमारे प्लानिट अर्थ पे अवेलेबल नहीं होंगे तो हम इस प्लानिट पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम लिव नहीं कर पाएंगे. बच्चों, so we start with our topic with air. Air is all around us. We cannot see, touch or taste air. However, we can feel air when it is moving. Moving air is called a wind. All living things need air to breathe. When the wind blows gently, we called it breeze. When the wind blows strongly, we called it storm. Now, आपने कभी एयर को देखा है, टच करा है या टेस्ट करा है? नहीं. हम कभी भी एयर को देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते, ना ही उसे टेस्ट कर सकते. सिर्फ हम हवा को महसूस कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं. जब एयर मूव करती है जेंटली, धीरे धीरे, प्लीजेंट एयर जो होती है उसे हम ब्रीज कहते हैं. जस्ट लुक लाइक द फर्स्ट इमेज. एंड बच्चों, जब हमारी एयर जो है बिल्कुल फास्टली मूव करती, तेज हवा चलती, उसे हम स्टॉर्म कहते हैं. लुक एट दिस सेकंड इमेज. नाउ come to the topic composition of air. Our earth is surrounded by a layer of air is called the atmosphere. Outside this atmosphere lies a vast space. There is not air in the space. बच्चों, आप सभी को पता है हमारे अर्थ प्लैनेट को एक लेयर ने ढक रखा है, सराउंड कर रखा है. वो लेयर किस चीज की है? एयर की, जिसकी वजह से हम अर्थ पे सरवाइव कर पा रहे हैं. उसी एयर की लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. बच्चों, एटमॉस्फेयर के बाहर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम लिव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देयर इज नॉट एयर प्रेजेंट आउटसाइड द एटमॉस्फेयर. एयर इज मेड अप ऑफ मेनी गैसेस, water vapors and dust particles. The main gases present in air are nitrogen 78%, oxygen 21% and other gases 1%, such as carbon dioxide, water vapor, hydrogen, etc. Air also contains a lot of germs and dust particles. Now students, look at the pie chart of the composition of air. In this pie chart shown that the different percentage composition conclude in the air. आप सभी को पता है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78% होती है हमारी एयर में, देन ऑक्सीजन 21% अवेलेबल होती है, देन अदर गैसेस जो है 1% होती है. अदर गैसेस में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, वाटर वेपर भी और हाइड्रोजन भी. इन सारी गैसेस के अलावा हमारी एयर के कंपोजिशन में डस्ट पार्टिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं और जर्म्स भी इन्वॉल्व होते हैं. नाउ लेट्स रीड द नोइंग फैक्ट. Air also contains water in the form of water vapor which we cannot see. But when it changes to water again we can see it. आप सभी ने कभी वाटर वेपर को देखा है? वाटर वेपर यानी
भाप जो अब जब एयर हमारी वाटर वेपर में कन्वर्ट होती है तो हम उसे देख नहीं पाते, बल्कि जब वाटर वेपर से वो दोबारा वाटर में चेंज होती है, भाप से पानी बन जाता है, तब हम उसे देख पाते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक यूजेस ऑफ एयर। एयर के यूज क्या क्या है? एयर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स टू सर्वाइव। वी यूज एयर इन मैनी वेज। बच्चों, आप सभी को पता है एयर क्या है, बहुत जरूरी होती है सरवाइव करने के लिए। फिर बच्चों, हमारी एयर किन किन वेज में मदद करती है, इसे समझने के लिए लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। बच्चों, जो हम ब्रीथ करते हैं ना गैस, वो एयर से ही तो मिलती है, एयर में ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। एयर इज फिल्ड इनटू टायर्स ऑफ व्हीकल्स। एयर जो है, जो आप व्हीकल्स चलाते हैं या आप देखते हैं, उसमें टायर्स में फिल हुई रहती है। एयर हेल्प्स टू मूव एंड सेल बोट्स। एयर जो है सेल बोट्स को मूव करने में हेल्प करती है। एयर हेल्प्स ग्लाइडर्स एंड हॉट एयर बैलून्स टू मूव। जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं जो आप स्काई में देखते हैं, वो एयर की वजह से ही मूव कर पाते हैं। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बच्चों, प्लांट्स जो है फूड प्रिपेयर कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, वो एयर की वजह से ही तो कर पाते हैं, एयर में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एयर हेल्प्स टू ड्राई क्लोथ। एयर जो है वो हमारे क्लोथ को ड्राई करने में भी मदद करती है। नाउ लेट्स सी द वी नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि हमें कैसे क्लीन और फ्रेश एयर की जरूरत होती है ब्रीथ करने के लिए। द एयर गेट्स पॉल्यूटेड बाय हार्मफुल गैसेस। आप सभी को पता है एयर जो है गंदी हो जाती है, उसमें क्या हो जाते हैं, हार्मफुल गैसेस जब एंटर करते हैं। Vehicles emit harmful gases after burning petrol or diesel in their engines. Factories also emit harmful gases. This cause air pollution. जब हमारे एयर में डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, जर्म्स आ जाते हैं, और कुछ हार्मफुल गैसेस यानी जो नुकसानदेह गैसेस होती हैं या जहरीली गैस होती है, वो हमारी एयर में एंटर करती है, तब हमारी एयर जो है पॉल्यूट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, वो पॉल्यूट कैसे होती है? जो व्हीकल्स में से स्मोक निकलता है उसकी वजह से, फैक्ट्रीज की चिमनीज की वजह से, या जब हम कोई भी चीज बर्न करते हैं, जलाते हैं, उसमें से जो स्मोक निकलता है उसकी वजह से। नाउ लुक एट द इमेज दैट कॉज एयर पॉल्यूशन। द स्मोक इज emitted from a vehicle. Now, pollution makes our environment unsafe to live in. We suffer from cough, asthma, eye irritation, and lung disease because of the polluted air. बच्चों, जो ये एयर पॉल्यूशन होता है, इसका इफेक्ट हमारे ऊपर तो पड़ता ही है और सबके ऊपर पड़ता है। इससे हमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अस्थमा हो सकता है, आई में इरिटेशन हो सकती है। इसलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री रखना चाहिए। नाउ कम टू द टॉपिक वाटर। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दी अर्थ। बच्चों, जो पानी होता है वो सारी ही लिविंग बीइंग्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। इट इज फाउंड इन पॉन्ड्स, वेल्स, रिवर्स, सीज, स्ट्रीम्स एंड इन द फॉर्म ऑफ रेन। अब ये वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा वाटर का मेन सोर्स है रेन, यानी बारिश, देन पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, wells, tubewells also. Now start with uses of water. Water का use हमारी लाइफ में कैसे है? We use water in many ways. We use it for drinking, cooking, bathing, washing and watering the plants. बच्चों, आप वाटर को डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हो, पीने के लिए, फूड को कुक करने के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए, या हम कह सकते हैं हाउस को क्लीन रखने के लिए या अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए। Now look at the some images that shown the various uses of water. First of all, drinking, cooking, washing, bathing and watering plants. Plants को water देने के लिए। Come to the topic states of water. अब हम समझते हैं water की different different forms होती हैं, different states होती हैं, उनके बारे में। Water exists in three forms. बच्चों, वाटर ना थ्री फॉर्म्स में अवेलेबल होता है हमारे प्लानट पे। फर्स्ट वन सॉलिड, दैट इज आइस, liquid, that is water, and gas, that is vapor. Normally water exists in liquid form. ज्यादातर हमें water जो है liquid form में मिलता है। It changes into vapor when heat at 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम पानी को हीट करेंगे, गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब वो वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पानी से भाप बनना स्टार्ट होगा। It becomes ice when temperature reaches below 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको पानी से, वाटर से आइस बनानी है, इसके लिए उसका टेम्परेचर आपको लो करना होगा, चेंजेस टू 0 डिग्री सेल्सियस।
आइस जो है सॉलिड फॉर्म होती है वाटर की, जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है। आपने देखा है आइस क्यूब्स की एक प्रॉपर शेप होती है। वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसकी कोई भी प्रॉपर शेप नहीं होती। जिस भी कंटेनर में आप उसे पोर करेंगे, डालेंगे, वो वाटर उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। It takes the shape of the container into which it is kept. Now, students, look at the different forms of water. First one is ice, that is solid form. Then we melt ice into water, that is liquid form. जब हम वाटर को हीट करते हैं, फिर देन इट इज कन्वर्ट इनटू गैस, और फिर वो कैसे बन जाता है, स्मोक फॉर्म या स्टीम फॉर्म में। नाउ लेट्स रीड द नोइंग फैक्ट। वाटर वेपर मिक्स विद एयर, इट हैज नो शेप। वाटर वेपर की बच्चों कोई भी शेप नहीं होती है। वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर एज इट इज सॉल्टी। बच्चों हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट में सॉल्ट होता है। हम कहते हैं समुद्र का पानी सॉल्टी होता है, यानी खारा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इवेपोरेशन। व्हेन वाटर इज हीटेड इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। बच्चों जब हमारा पानी गर्म होना स्टार्ट होता है, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस से अबव होना स्टार्ट होता है, तो हमारा पानी जो है वाटर वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ लुक एट द इमेज ऑफ द इवेपोरेशन। बच्चों ये ओशन सरफेस है, ये समुद्र का पानी है। जब सन की हीट की वजह से वो पानी गर्म होता है, तब वो इवेपोरेशन करना स्टार्ट करता है और वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। नाउ व्हाट इज कंडेंसेशन? When water vapors are cooled, they change back into the water. This process is called condensation. बच्चों जब हमारा जो वाटर वेपर में पानी चेंज हो गया है, जब वो धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट होता है, उसका टेम्परेचर लो होता है, तब वो वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। लुक एट द इमेज ऑफ द कंडेंसेशन। Now, let's come to the process of the water cycle. The forms of water keep changing in nature. When the water present in ocean, rivers and ponds gets heated due to the heat of the sun, it changes into water vapor. This is called evaporation. बच्चों सबसे पहले आप सभी को पता है वाटर जो है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में हमारे प्लानट पे अवेलेबल है, जस्ट लाइक इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। जब सन की लाइट इन वाटर सोर्सेज पे पड़ती है, तब ये वाटर सोर्सेज जो होते हैं पानी को इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वाटर जो इवेपोरेट होता है तब वो वाटर वेपर में चेंजेस हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। ये आपके वाटर साइकिल का फर्स्ट प्रोसेस होता है। देन दिस वाटर वेपर राइजेस अप एंड कूल्स डाउन टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फिर जब ये वाटर वेपर है अपर लेवल में जाते हैं स्काई में, तब इनका टेम्परेचर लो होना स्टार्ट होता है, तब वो दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, जो सेकंड प्रोसेस होता है। These droplets together form clouds and lead to the rainfall. This process is called precipitation. फिर जो ये सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं एक साथ मिलके क्लाउड्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से रेन आती है, बारिश आती है। उसकी इसी प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। दिस इज द थर्ड वन। Through this, the water bodies like oceans and rivers get back water, जिसकी वजह से वापस से वाटर सोर्सेज को अपना पानी मिल जाता है बारिश के पानी के थ्रू। इन कोल्ड रीजन्स दीज वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज एंड फॉल डाउन एज स्नो। और बच्चों जहाँ पे ज्यादा ठंड होती है, तो यहाँ वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है स्नो के फॉर्म में क्या करते हैं, फॉल होते हैं और माउंटेन्स पे कलेक्ट हो जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द इमेज ऑफ द वाटर साइकिल दैट शो द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ द वाटर। सबसे पहले क्या होता है, वाटर कलेक्ट होता है हमारे पॉन्ड में। फिर सन की हीट की वजह से वाटर इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है और इवोपरेट होके ये हमारे स्काई में वाटर वेपर में चला जाता है। फिर उसके बाद कंडेंसेशन का मीन्स होता है वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट्स बनना। और फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन में वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, क्लाउड्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से बारिश आती है। फिर ये प्रेसिपिटेशन की वजह से हमारा वापस से बारिश की वजह से पॉन्ड में पानी आ जाता है। इसी तरीके से हमारा वाटर जो है रिसाइकल होता रहता है, खत्म नहीं होता, कम नहीं होता। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द टॉपिक वाटर स्टोरेज। वी मस्ट सेव एंड स्टोर वाटर केयरफुली फॉर आवर यूज। बच्चों आपको ना वाटर का अच्छे से केयरफुली यूज करना चाहिए। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें वाटर को कहाँ पे स्टोर करके रखना है। वी शुड स्टोर वाटर इन अ क्लीन कंटेनर। आप हमेशा अपना वाटर एक क्लीन कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। कीप द कंटेनर कवर्ड। वो कंटेनर कवर्ड होना चाहिए सो डेट डस्ट, फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स डू नॉट गेट इनटू इट, जिसकी वजह से कोई भी डस्ट या मॉस्किटोज उसके अंदर
एंटर ना हो और आपका वाटर जो है पॉल्यूट ना हो। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द इमेज दैट स्टोर द वाटर, दैट इज वाटर स्टोरेज टैंक। नाउ व्हाट इज वाटर स्कैरसिटी? वाटर स्कैरसिटी क्या होती है? There is a scarcity of drinking water in many places in our country. People have to cover a long distance to drinking water. बच्चों, जब पानी की कमी हो जाती है उसे हम वाटर स्केर्सिटी कहते हैं। कई जगहों पे बच्चों आज भी पानी की कमी है, जहाँ पे लोगों को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करके ड्रिंकिंग वाटर को लेने के लिए जाना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर एट एनी टाइम। नाउ स्टूडेंट्स, गेटिंग ड्रिंकिंग वाटर एट होम। अब हमें घर पे ड्रिंकिंग वाटर कैसे मिलता है? एट होम वी गेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप्स। आप सभी को तो पता है कि घर में जो टैप्स होते हैं उससे आप ड्रिंकिंग वाटर ले लेते हैं, बट वो टैप्स में पानी आता कहाँ से है? बिफोर इट रीचेज आवर होम इट इज प्यूरिफाइड बाय बिग मशीन्स कॉल्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। बच्चों, आपके घर में ड्रिंकिंग वाटर में टैप्स में आने से पहले उसे प्यूरिफाई किया जाता है एक बिग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। नाउ look at the image of the water purifying process. In this process बच्चों क्या होता है? सबसे पहले हमारे रिवर से वाटर को लिया जाता है, वाटर इनटेक। देन कम इट टू कोगुलेशन। कोगुलेशन में क्या होता है बच्चों? जो कोगुलेंट्स होते हैं, कोगुलेंट्स मतलब कि जो हमारे हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, बिगर पार्टिकल्स होते हैं, उसे प्यूरिफाई किया जाता है। देन कम टू दी सेडिमेंटेशन प्रोसेस। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? जो पानी में मिट्टी होती है ना, सैंड, ये पेबल्स होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं नीचे और साफ पानी आपको ऊपर आ जाता है। फिर उस साफ पानी को फिल्टर किया जाता है, फिल्ट्रेशन होता है। देन उसे डिसइंफेक्शन बनाया जाता है। डिसइंफेक्शन के लिए हम क्लोरीन का यूज करते हैं या कुछ हमारे डिसइंफेक्टिंग टैबलेट्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से पानी से सारे जर्म्स और बैक्टीरिया को किल किया जाता है। फिर अब वो आपका प्योर वाटर हो गया, फिर उसे एक वाटर स्टोरेज टैंक में स्टोर किया जाता है। फिर उस बड़े से टैंक से आपके घरों में पानी को सप्लाई किया जाता है, जिससे आप टैप से ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ कम टू द टॉपिक सेव वाटर। वाटर इज प्रीशियस। बच्चों, पानी जो है बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है। इफ ईच वन ऑफ अस बिहेव्स इन अ रिस्पॉन्सिबल वे वी कैन सेव वाटर फ्रॉम बीइंग वेस्टेड। बच्चों, अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हमें पानी को बचाना है, तो हम हर एक जना जो है कितना ज्यादा अमाउंट में वाटर को सेव कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वाटर की स्केर्सिटी भी हो रही है। नाउ स्टूडेंट्स, हाउ डज वी सेव वाटर? लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। Collect rainwater in buckets and use it to water your plants or wash clothes. बच्चों, जो बारिश का पानी होता है ना, आप उसे बकेट में कलेक्ट कर सकते हैं। बारिश के पानी आप पी नहीं सकते, मगर आप उसे अदर यूज के लिए यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक टू वॉशिंग दी कार्स, वॉशिंग दी फ्लोर्स और वाटरिंग दी प्लांट्स। डू नॉट लेट दी टैप रनिंग व्हेन यू ब्रश योर टीथ। बच्चों, जब भी आप ब्रश करते हैं टीथ को, तो आप अपने टैप को ऑन नहीं रखेंगे। यूज अ बकेट ऑफ वाटर टू टेक बाथ। टेकिंग शावर बाथ वेस्ट वाटर। बच्चों, आप जब भी बाथिंग करने जाते हैं, नहाने जाते हैं, तो आप बकेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप टैप्स का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, ये शावर का यूज करते हैं तो इससे वेस्टेज ऑफ वाटर होती है। गेट लीकिंग टैप्स एंड ब्रोकन पाइपलाइंस रिपेयर्ड। हमें जो घर की टैप्स होती हैं या पाइपलाइंस ब्रोक हो जाती है, उन्हें टाइमली रिपेयर करवाते रहना चाहिए। यूज द लेफ्ट ओवर वाटर आफ्टर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द गार्डन। बच्चों, जब आप कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल मार्केट से बाय करके लाते हैं, सबसे पहले आप उसे वॉश करते हैं। फिर जो वॉश हुआ हुआ आउटर वाटर होता है, तो आप उसे क्या करते हैं, आप उसे फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, बल्कि आप उसे यूज कर सकते हैं प्लांट्स को वाटर देने के लिए या गार्डन को क्लीन करने के लिए। प्लांट मोर ट्रीज, इट हेल्प्स इन कंजर्विंग वाटर। बच्चों, आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रीज क्या करते हैं, हमारे वाटर को कंजर्व करके रखते हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द मॉरल ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? वाटर इज प्रीशियस रिसोर्स, वी शैल नॉट वेस्ट वाटर, तो वी शुड कंजर्व वाटर। बच्चों, पानी जो है बहुत एक प्रीशियस रिसोर्स होता है जो हमारे अर्थ पे अवेलेबल है। हमें उसका जुडिशियस यूज करना चाहिए, अच्छा यूज करना चाहिए, हमें कभी भी उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, और हमें अपने वो स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जिससे हम अपने वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। Now, students, let's have a quick look on the following points. Let's re-revise. Air is present everywhere on the earth. It is a mixture of many gases, water vapor, dust and smoke. बच्चों, एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट भी होता है, स्मोक भी होती है, और हमारे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस भी होती हैं। एयर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स टू सर्वाइव। एयर जो है हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, और उतनी हमारे लिए भी। पॉल्यूशन मेक्स आवर एनवायरनमेंट अनसेफ टू लिव इन। बच्चों, जब हम अपने पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं,
हम डस्ट पार्टिकल्स इन्वॉल्व करते हैं एयर में, वाटर में, तो वो हमारे लिए भी अनसेफ होता है, अनहेल्दी होता है। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स ऑन दी अर्थ। पानी जो है सारी ही लिविंग बींग्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है जो अर्थ पे सर्वाइव करते हैं। वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर जो है हमारे अर्थ पे थ्री फॉर्म्स में हमें अवेलेबल होता है। फर्स्ट वन इज हमारा सॉलिड फॉर्म, डेट इज आइस। सेकेंड वन इज लिक्विड, डेट इज वाटर। एंड थर्ड फॉर्म इज वाटर वेपर, डेट इज गैस। Now, when water is heated, it turns into water vapor. जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। Get leaking taps and broken pipelines repaired. हमें टाइमली क्या करना चाहिए? टैप्स को, ब्रोकन पाइपलाइंस को रिपेयर करवाते रहना चाहिए। Now, students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.